everyone, good evening. Thank you for joining this Python webinar. My name is Kashish Chajlane. I'm your community head at Imperium. So, before we start the webinar, I want to share some things about Imperium. It won't take much of your time, and I'll be handing it over soon to our speaker, Mr. Krishna Marfatia. So, अबाउट इम्पीरियम जो है वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हम जो है वो लोगों को एजुकेशन सर्विसेज एंड वी हेल्प यू बिल्ड योर ओन स्टार्टअप्स ओके एंड वी फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर हम एक इंडिविजुअल को उसकी ग्रोथ की तरफ पुश करते हैं या फिर वी ड्राइव योर ग्रोथ एंड it is all done through real world solutions, and we would aim to provide you with learning opportunities so that your innovations, your personality can develop more and you can stay ahead in your careers compared to your own peers in your classes, in your own industries, or whoever. So, Python is one of the key skills used in Imperium, and it aligns with Imperium's goals, that is, to bridge the gap between learning and real world applications. So, through these initiatives like webinar, seminars, या फिर lectures, या फिर other things that is provided by community, we are providing you with a practical, hands-on and learning experience जो कि आपके personal और professional growth में काफ़ी help करेगा. Also, this is going to be an interactive session. So I really hope if you have any questions, if you have any queries or doubts, please put it out on the chat box and we will be answering them at the end so that you know that every question you have asked is being answered after you have put it in the chat box. Also, whenever the host is asking you to answer something, please put it out in the chat box. We are looking at your answers. So, जो आज का सेशन है वो पाइथन पे फोकस्ड है एंड वी हैव कृष्णा हियर will guide us through the essentials and show why Python is such a versatile and in demand language. Feel free to ask any questions during the session in the chat box. We will answer them at the end. Also, let me introduce our host. His name is Mr. Krishna Marfatia. His educational background is that he's a student at ADYPU and pursuing his BTech Computer Science Engineering, and is also a member of Imperium community and a Python tutor. So now I will hand it over to Krishna. Please, Krishna. Hello everyone, I am your host for today's webinar. So let's get started. सबने पाइथन का नाम तो सुना होगा अपने बैचमेट्स या तो कोडिंग या प्रोग्रामिंग की दुनिया में घुसने से पहले पाइथन का नाम तो सुना ही होगा अपने बैचमेट से या तो क्लासमेट से. थोड़ा इंट्रोडक्शन तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ. पाइथन का ये कोट है, बिकॉज टाइपिंग लेस इज मोर फन. ये क्यों लिखा गया है वो भी मैं आपको डीपली समझाता हूँ. हम कोडिंग तो बहुत सारी लैंग्वेज में कर सकते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पर पाइथन ही क्यों? क्योंकि पाइथन अच्छे से अच्छे प्रोग्राम और बड़े से बड़े से और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स भी कम कोड और इफेक्टिव कोड्स में कंप्लीट करता है, और उसके कोड्स भी इजी टू लर्न होता है और हम उसे समझ भी आसानी से सकते हैं. या तो कोई भी बिगिनर हो सकता है, उसे काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है. उसके कोड्स इंग्लिश लैंग्वेज से सिमिलर होते हैं, उसमें रॉकेट साइंस जैसे वर्ड्स नहीं यूज होते. पाइथन ही ऐसी लैंग्वेज है जो ज्यादातर बिगिनर्स के लिए यूज होती है सिखाने के लिए, आपके कॉलेज या फिर किसी भी फील्ड में या प्रोग्रामिंग की दुनिया में जाने से पहले मोस्ट इन द केस पाइथन ही यूज होती है सिखाने के लिए. इंट्रोडक्शन टू पाइथन. कोई बताना चाहेगा पाइथन के बारे में कुछ?
जो इंटरेस्टेड है अपना हैंड रेज़ कीजिए पोल में। ठीक है, मैं समझाता हूँ। पाइथन एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है। सिंपल, ईज़ी टू लर्न, उसमें इतना कॉम्प्लेक्स वर्डिंग नहीं है। वो हम आसानी से समझ सकते हैं। वो इस अपनी सिम्प्लिसिटी के लिए जाना जाता है। अब बहुत सारे फ़ेमस ऐप्स हैं, वो पाइथन ही यूज़ करते हैं। जैसे कि एल्गोरिदम के लिए इंस्टाग्राम हो गया, स्पॉटिफ़ाई हो गया, ये 2 फ़ेमस प्लेटफ़ॉर्म हैं, जो अपनी कोडिंग से जो एप्लीकेशन बना है, उसके एल्गोरिदम के लिए पाइथन ही यूज़ करता है। पाइथन आपको रिकॉग्निशन भी बहुत अच्छा देगा। उसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, हम सब पाइथन की कम्युनिटी में ही आते हैं। आप 5 आपका 5 ऑफ 5 लोगों का ग्रुप होगा। उसमें से 3 लोग तो पाइथन के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे, बेसिक से लेके इंटरमीडिएट तक। आप अपना कुछ भी डाउट या तो कुछ भी शेयर कर सकते हो और आपको आंसर मिलेगा। आप किसी भी प्रोजेक्ट या प्रॉब्लम में अटक जाओ, तो आपको आंसर मिलेगा क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। इसकी लाइब्रेरीज़ भी उतनी ही बड़ी है। अब पाइथन की हम लाइब्रेरीज़ के बारे में बात करते हैं। पाइथन की लाइब्रेरीज़ बहुत बड़ी है। ये 4 मेजर लाइब्रेरीज़ हैं और भी बहुत सारी है, पर मैं इसके बारे में अभी बात करता हूँ। पांडास, किसी ने नाम सुना है क्या पांडास? तो कोई तो चैट बॉक्स में इंटरैक्ट करो, हैंड हैंड रेज़ कीजिए कोई भी। नहीं आता हो तो हाँ, यस। क्या जानते हैं आप? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, माइक ओपन करके बोलने की ज़रूरत नहीं है, चैट बॉक्स में भी लिख दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। जितना पता हो आपको, थोड़ा तो थोड़ा आप बता सकते हैं। हेलो? यस, थोड़ा तो थोड़ा आप जितना पता हो उतना बता सकते हैं। हाँ, हाँ, करेक्ट। पांडास प्लेट लाइब्रेरी को डेटा हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। बाकी सब भी यूज़ हो सकते हैं, पर बहुत मेजर और ब्रीफ डेटा होता है, जो बहुत यूज़ होता है, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ या तो कंपनीज़ में यूज़ होता है, वो पांडास ही मैनिपुलेट करता है और हैंडल कर सकता है। दूसरे हो गए जैसे मैटप्लॉट हो गया, वो ब्यूटीफुल चार्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। नंपाई साइंटिफिक कंप्यूटेशन करने के लिए यूज़ होता है। एआई की हेल्प से वो साइंटिफिक कंप्यूटेशन को ईज़िली कर देता है और वो एक ईज़ी टू यूज़ लाइब्रेरी है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन की वजह से वो जाना जाता है। पाइथन की लाइब्रेरीज़ हमें पावर देती है कि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है वो ईज़ी टू एक्सेस कर सकें या तो ईज़ी उसको कर सकें। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हो या तो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स या तो बेसिक लेवल पे सीख के छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बना के आप अपना सीवी इंप्रूव कर सकते हो। आप इंटर्नशिप गैदर कर सकते हो, सर्टिफिकेट्स गेन कर सकते हो और आप आईटी फील्ड में अपना एक रिकॉग्निशन पा सकते हो। मतलब आपकी एक पहचान बना सकते हो। पाइथन इन साइबर सिक्योरिटी, ये भी बहुत मेजर टॉपिक है। कौन-कौन एक्साइटेड है साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानने में? सिर्फ हैंड अब मैं साइबर सिक्योरिटी का एक छोटा-सा 2 कॉन्सेप्ट है वो मैं बताता हूँ। आप सबने देखा होगा, अब अपना फ़ोन का कैमरा एक ऑन कीजिए। अब जैसे ही आप कैमरा ऑन करते हो, तो ग्रीन लाइट्स ब्लिंक करती है। वो क्यों करती है किसी को पता है क्या? पहले हम यूज़ करते थे फ़ोन और उसका कैमरा ऑन करते थे, तब तो वो ब्लिंक नहीं करती थी। पर अब क्यों ग्रीन लाइट अब यूज़ होने लग गई? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में एक ऐसा प्रोटेक्शन के लिए ये डाला गया है, क्योंकि पहले जब किसी को लिंक शेयर करते थे या तो इमेज शेयर करते थे, उसमें वो लिंक एपीआई थ्रू फिट कर देते थे। वो जैसे ही आप ओपन करते थे, आपके कैमरे का एक्सेस जिसने लिंक भेजा है उसको मिल जाता था और आपका कैमरा ऑन हो जाता था और आपको पता भी नहीं चलता था कि आपका कैमरा ऑन है और सारी वीडियोज़ और इमेजेस उसको पहुँच रही है। मतलब लाइव कैमरा आपका सीसीटीवी जैसा वर्क कर रहा था। ये चीज़ को रोकने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए साइड में ग्रीन लाइट या ब्लिंक करने के लिए रख दी गई है।
अब जैसे ही आपका कैमरा ऑन होता है, या तो आप खुद कर रहे हो या तो कोई आप लिंक से हो रहा है, तब ये ग्रीन लाइट ऑन होगी। आप अभी भी चेक कर सकते हो अपना कैमरा ऑन करके, ये ग्रीन लाइट स्टार्ट होगी। और दूसरी चीज़ आपने नोटिस की कि आप वेबसाइट पे कुछ भी चीज़ सर्च करते हो, तो एचटीटीपीएस क्यों यूज़ होती है? पहले तो एचटीटीपी यूज़ होती थी। ये एस स्टैंड करता है सिक्योरिटी की वजह से। पी एचटीटीपी अच्छा था, पर वो ईज़ी टू एक्सेस था। मतलब कोई भी हैकर या बिगिनर साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट भी उसको एक्सेस कर सकता था वो वेबसाइट को। एस स्टैंड फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने एचटीटीपीएस कंपल्सन लगा दिया है। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी भी लिंक जो एचटीटीपी पे वर्क करती हो, वो आप ओपन ना करो, क्योंकि वो सेफ नहीं होगी। अब ऑटोमेशन के बारे में बात करते हैं। पाइथन साइबर सिक्योरिटी को ये एम्पावर करता है कि वो बड़े से बड़े टास्क स्कैन इज़िली कर सके, एनालाइज़ कर सके, डेटा को रिसर्च में बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे लंबे से लंबे और बड़े से बड़े डेटा सेट्स होते हैं, उनको वो इज़िली एनालाइज़ कर देता है। ये बहुत हेल्प करता है। जैसे कि हम अपने गूगल क्लाउड या फिर स्टोरेज के लिए जो फ़ोटोज़ होते हैं, उन सबको स्कैन करने के लिए ये भी यूज़ होता है। अब मालवेयर एनालिसिस, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ये मालवेयर एनालिसिस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करती है, ताकि चेक कर सके कि अपनी फाइल्स जो इन्होंने डाउनलोड की है या तो इम्पोर्ट की है, उसमें कोई मालवेयर एक्टिविटी तो नहीं हो रही ना, या तो फिर कोई वायरस तो नहीं आ गया ना। ये सब चीज़ों के लिए यूज़ होती है। एथिकल हैकिंग, इस चीज़ के लिए तो सब एक्साइटेड है। सबको कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ हैक करना है या तो कुछ ना कुछ बनाना है। सब ज्ञान सब देते, पर बेसिक क्या होता है उसमें, क्या होता है वो कोई नहीं दिखाता। कोई साइबर सिक्योरिटी का कोई एग्ज़ाम्पल देना चाहता है क्या? कि किसी ने अपने सराउंडिंग में कुछ देखा हो? चैट में लिख दीजिए। ऑडियो ना भी ऑन करो चलेगा, पर चैट में लिख दीजिए। एनीवन? मैं फिर एक-एक करके चूज़ करूँगा। आप अपने आप से ही लिख दीजिए। कुछ भी हो, कोई जज नहीं करेगा। किसी ने तो कुछ सुना होगा ना, किसी का कुछ हैक हुआ हो या किसी के मालवेयर एक्टिविटीज़ हो या कुछ तो प्रॉब्लम हो, सराउंडिंग में ऐसा होता तो है, पर कोई अभी हैंड रेज़ करना नहीं चाहता। कोई एक भी पॉइंट रख दो। हाँ, नविष्का, क्या बताना चाहते हो आप? I had this one friend of mine whose Instagram account got hacked without her like any knowledge, and all of a sudden she couldn't access her account automatically. Like she had no access to her account, her Instagram account. Though she did not click on any link or anything like that, but it was very suspicious. ये मैं टाइम स्पेन जान सकता हूँ या कि ये कब हुआ था? It was around August last year. हाँ, अब मैं समझाता हूँ। ये 2 चीज़ों से हो सकता है। या तो आप किसी को लिंक शेयर करो और वो लिंक पे क्लिक करे और हैक हो जाए, वो पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर आप जैसे पब्लिक वाईफ़ाई हो गया, आप जैसे कैफ़े में बैठे हो या तो कॉलेज का वाईफ़ाई हो गया, आप वो वाईफ़ाई को जॉइन करके अगर आप फ़ेसबुक में लॉगिन भी कर रहे हो ना, और तो आपको वीपीएन यूज़ करना चाहिए। अगर आप वीपीएन यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप सेफ नहीं हो। आपका डेटा कोई और भी एक्सेस कर सकता है। मतलब आपने उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड भी डाला ना, तो किसी और तक भी पहुँच सकता है। इसको अपडेट करने के लिए फेसबुक ने टू स्टेप वेरिफिकेशन लाया है। टू स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है कि वो फ़ोन नंबर पे कोड भी आता है, बट टू स्टेप वेरिफिकेशन सब एक्टिवेट नहीं करते। इसलिए ये सब चीज़ों के लूप होल्स का बेनिफिट लेते हैं ये लोग। 2 चीज़ों से होता है, या तो आप लिंक भेजो या तो फिर कोई पब्लिक वाईफ़ाई को एक्सेस कर लो और इसमें जितने भी लॉगिन होते हैं वो चेक कर सकते हैं आप। वैसे एक ब्रूट फ़ोर्स अटैक है। वो लिंक भेजने वाले से सिमिलर ही है। अब लिंक भेजने में तो हमें पता चल जाता है कि उसने यूज़र नेम और पासवर्ड क्या डाला है और वो हमें ईज़िली पता चलता है। ब्रूट फ़ोर्स अटैक कैसे काम करता है वो मैं समझाता हूँ। ब्रूट फ़ोर्स अटैक में एक मिलियंस और बहुत सारे मिलियंस पासवर्ड की डेटा लिस्ट बनी जाती है।
मतलब बहुत सारे एज्यूम्ड और कंप्यूटराइज्ड जनरेटेड पासवर्ड्स होते हैं। वो एक-एक करके सारे ट्राई करता है और जो भी मैच कर जाता है वो हेल्प करता है एक्सेस करने में। अब इतने सारे पासवर्ड है तो सब सोचते हैं टाइम बहुत जाता होगा, पर नहीं, पाइथन ये हेल्प करता है कि उसे कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स में कंप्लीट कर देता है। ये भी एक रास्ता है आप किसी का आईडी हैक करने में या तो किसी चीज़ का एक्सेस लेने में हेल्प करते हैं। ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। एनीवन? What was the last cyber attack you named right now? क्या? आपने जो अभी साइबर अटैक का नाम बोला, what was that? ब्रूट फोर्स अटैक। Okay. वो बहुत एक फेमस अटैक है, जो पासवर्ड क्रैक करने के लिए यूज़ होता है। आप फ़ोन में टर्मेक्स आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, तो टर्मेक्स से वो एप्लीकेशन है, उसमें सारे डेटा इंस्टॉल करके आप उसी में से भी यूज़ कर सकते हो ये सॉफ्टवेयर, ये टूल यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पीसी में करना है, तो काली लिनक्स से कर सकते हो। ये इसके लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। और किसी को नॉर्मल नॉर्मल बेस या सीखने के लिए या तो एन्जॉयमेंट के लिए ये यूज़ करना है, तो फ़ोन में टर्मेक्स करके आता है, ऐप प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हो, या तो केबी या तो एमबी में ही होगा, आप वो इंस्टॉल कर सकते हो। वो बहुत अच्छा ऐप है, मतलब बेसिक आपको सिखा देगा कि साइबर सिक्योरिटी में भी ये हम फ़ील्ड कर सकते हैं। एजुकेशन लेवल या तो चेकिंग पर्पज़ के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। अब पाइथन गेम्स के लिए गेम की दुनिया में क्या-क्या उसके इनपुट है या तो क्या रोल प्ले करता है, वो देखते हैं। पाइथन मेजर टेस्टिंग साइड के लिए यूज़ होता है। अब पाइथन की हेल्प से 2D गेम्स बनती है ज़्यादातर, जैसे कि फ्रिट्स ऑन फायर हो गया, डिज़्नी टून ऑनलाइन हो गया, टून टाउन हो गया। अब 2D गेम्स इसलिए बनती है, जैसे बड़ी-बड़ी गेम है, जैसे कि मैंने चैट बॉक्स में लिखा था किसी की बीजीएमआई आईडी हैक हो गई, पर उसी से रेफरेंस लेके मैं बताता हूँ, जैसे कि बीजीएमआई हो गया। बीजीएमआई बहुत बड़ी गेम है। अब उसको टेस्ट करने के लिए मतलब वो कैसे इनपुट देगी, वो कैसे आउटपुट देगी, मतलब उसका रेफरेंस कैसा होगा और वो अट्रैक्टिव लगेगी या नहीं लगेगी, वो उसका रिएक्शन कैसा होगा, इसके लिए वो पहले 2D में बनाई जाती है। क्या गेम प्लॉट पे लैंड करेगी या नहीं करेगी? ये गेम डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज़ होता, मतलब काइंड ऑफ वो गेम को चेक करने के लिए यूज़ होता है, कि ये गेम वर्क करेगी या नहीं करेगी, एज़ अ टेस्ट ड्राइव। अब 3D गेम्स में पांडा 3D हो गया और 3D गोडॉट फॉर 3D कांसेप्ट्स। ये 3D में भी बन सकता है, पर ये ज़्यादातर जो पाइथन यूज़ करना होता है, वो टेस्ट ड्राइव की तरीके से यूज़ होता है। बहुत फेमस गेम्स हैं, जैसे कि फ्रेट्स ऑन फायर। आपने वो गिटार वाली गेम तो देखी ही होगी, जिसमें हमें कीबोर्ड पे से रैंडमली कोई भी की असाइन की होती है, वो हमें प्रेस करनी होती है और एक म्यूज़िकल ट्यून बजती है। वो है फ्रेट्स ऑन फायर, जो इंस्टाग्राम की रील और बहुत सब जगह बहुत फेमस है वो गेम। आप चाहे तो अभी भी चेक कर सकते हो फ्रेट्स ऑन फायर। और दूसरी एक है डिज्नी टून टाउन, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है डिज्नी। वो भी पाइथन का यूज़ करके उसने गेम बनाई थी। मिकी माउस क्लब हाउस किसने देखा? हैंड रेज़ कीजिए। मिकी माउस क्लब हाउस तो सबने देखा है। ऐसा ही इंटरफेस से सिमिलर करने के लिए मल्टीप्लेयर गेम बनाई थी इन लोगों ने, जिसमें बीजीएमआई तो अभी आई है, पर ये तो बहुत पहले टून टाउन बनी थी। उस टाइम की मल्टीप्लेयर गेम बहुत फेमस गेम है ये। सब एक दूसरे को इंटरैक्ट करके एक दूसरे से डिस्कॉर्ड या किसी सर्वर से जॉइन करके बात करके खेल सकते थे। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग गेम है। तो आप सोच सकते हो इतने से कॉम्प्लेक्स से प्रोजेक्ट्स जो डिज्नी और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ यूज़ कर रही है, वो पाइथन का यूज़ कर रही है और पाइथन सिंपल से कोड देता है और वो ईज़ी टू लर्न है, आप कोई भी सीख सकते हो। आप 3 दिन में छोटे से छोटे प्रोजेक्ट या 2 दिन में आप सिंपल से बेसिक से लेक्चर्स अटेंड करके भी कुछ प्रोग्राम बना सकते हो। अब मैं एक गेम दिखाता हूँ, वो कार्ड्स के ऊपर है, एक ब्लैक जैक गेम है।
मैं पहले उसका रियल डेमो दे देता हूँ और फिर मैंने जो उसके कोड्स में उसको वो गेम को बनाई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से। गेम विजिबल है क्या? ये गेम के बारे में कौन-कौन जानता है? रूल्स पता है क्या किसी को इस गेम के? ठीक है, मैं समझा देता हूँ रूल्स। इसमें 2 प्लेयर होते हैं, एक तो कंप्यूटर और एक हम। अब हमें ना 2 कार्ड्स मिलते हैं और कंप्यूटर को भी 2 कार्ड्स मिलते हैं। जैसे मैं डील पे प्रेस करता हूँ, तो मैं बेट लगाता हूँ 100 की। तो मैंने डील पे क्लिक किया। अब मुझे भी 2 कार्ड्स मिले और कंप्यूटर को भी 2 कार्ड्स मिले हैं। अब मुझे उसका 1 कार्ड दिख रहा है और मुझे अपने तो दोनों कार्ड दिख रहे हैं। इसमें जैक और वो सबके 10-10 पॉइंट्स होते हैं, जैक, किंग और क्वीन के। एस के 11 पॉइंट्स होते हैं। अब हमें इस गेम का रूल्स क्या है कि हमें 21 के नज़दीक पहुँचना है। जो 21 के ज़्यादा नज़दीक होता है, वो जीत जाता है और 21 के ऊपर जो जाता है, वो हार जाता है। अब हम कार्ड्स कितनी भी बार ले सकते हैं, हमारे ऊपर है, हमारा कॉल है। हमें एज़्यूम करना है कि हम कितने कार्ड्स लेंगे कि 21 के नज़दीक पहुँच पाएँगे। तो मैंने जैसे 14 है, अब मुझे लगता है कि मैं और एक कार्ड लूँगा तो नज़दीक तो पहुँच ही जाऊँगा, तो मैंने हिट पे क्लिक किया। अब मैं 18 पहुँचा। अब मैं स्टैंड करना चाहता हूँ कि देखते हैं अब कंप्यूटर जीतेगा या मैं जीतूँगा। मैंने स्टैंड किया। उसके 25 है, मैं 18 है। मैं 21 के नज़दीक हूँ और वो 21 के ऊपर चला गया, इसलिए वो हार गया और ये मैं गेम जीत गया। अब ये इतनी अच्छी गेम दिखने वाली, ये 3D सी गेम है। अब ये चेक करने के लिए ये कैसा वर्क करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए कोडिंग बहुत यूज़ होती है। अब मैं आपको कोडिंग दिखाऊँगा उसकी। ये हो गई वो गेम की कोडिंग। अब मैं ये गेम आपको इसमें रन करके दिखाता हूँ। उसमें भी इंटरफ़ेस थोड़ा अलग था, भाई ये कोडिंग की लैंग्वेज का इंटरफ़ेस है। इसमें पहले लोकेशन देना पड़ता है कि वो फ़ाइल कहाँ पे सेव है। अब जैसे कि मुझे कार्ड्स मिले 5 और 10, डीलर का एक कार्ड मुझे दिख रहा है 8, दूसरा नहीं दिख रहा। अब मेरे 15 है, तो मुझे एज़्यूम करना है कि मैं 21 के नज़दीक पहुँचूँगा और या और कार्ड एक कार्ड ले लूँ। मैं सोचता हूँ एक कार्ड ले लेता हूँ। मैं 18 पे पहुँच गया हूँ। अब मैं स्टैंड करूँगा, क्योंकि अब मुझे रिस्क नहीं लेना कि 21 के अबोव चला गया तो मैं तो हार ही जाऊँगा। इसलिए मैं स्टैंड पे क्लिक करता हूँ। डीलर का 17 था और मेरा 18 था, इसलिए मैं 21 से ज़्यादा नज़दीक था, तो मैं जीत गया। आपने देखा होगा वो इंटरफ़ेस कैसा था और ये कोडिंग की दुनिया का इंटरफ़ेस ये थोड़ा डल दिख रहा है, पर वो गेम को टेस्ट करने के लिए पहले इसमें ही बनी जाती है। वो गेम इसमें ही बनाई जाती है, ताकि हमें पता लग सके कि गेम वर्क करेगी या लैंड करेगी या नहीं करेगी। किस किन-किन को ये गेम इंटरेस्टिंग लगी और घर पे जाके कौन ट्राई करने वाला है, गेम खेलने वाला है ये वाली? हैंड रेज़ कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा इतना रिएक्शन देख के। अब पीपीटी पे फिर से जाते हैं।
अब पाइथन इन वेब डेवलपमेंट के लिए बारे में तो सब जानते हैं, सबको वेबसाइट बनानी है, कुछ ना कुछ वेबसाइट पे कुछ बनाना है। कोई कुछ अपना एक्सपीरियंस कह सकता है क्या? मतलब कोई ना कोई तो होगा जिसने कुछ अभी तक कुछ बनाया होगा वेबसाइट पे। अपना हैंड रेज़ करके कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। एनीवन? कोई तो हैंड रेज़ कर दो। जैसा हो वैसा आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ऑडियो ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ये फुल स्टैक और बैक एंड और फ्रंट एंड के लिए भी यूज़ होता है। इसके 2 मेजर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे जेंगो हो गया, फ्लास्क हो गया। अब जेंगो एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क बैटरीज़ इंक्लूडेड अप्रोच है। बैटरीज़ इंक्लूडेड मतलब किसी को पता है क्या? ये फ्रेज़ क्यों यूज़ हुआ है? बैटरी इंक्लूडेड मतलब इसमें बहुत सारे बिल्ट इन टूल्स हैं। मतलब हमें किसी बाहर झाँकने की ज़रूरत नहीं है। सब टूल्स इसमें पहले से ही है और एक ईज़ी सा इंटरफ़ेस है। बहुत बड़े-बड़े डेटा सेट या तो कोड्स और मैनिपुलेट करने के लिए जेंगो यूज़ होता है। फ्लास्क इसका एकदम से ऑपोज़िट है। इसमें छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं और लाइट वेट और फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क वाले प्रोजेक्ट्स इसमें बनते हैं। और इसकी लाइब्रेरीज़ भी बहुत लिमिटेड नीडेड जितनी ज़रूरत है उतनी ही दी गई है। और जिसको ज़्यादा डालनी है, वो कस्टमाइज़ करके ऐड ऑन कर सकता है। यही पाइथन की ख़ासियत है। वो दोनों आपको प्लेटफ़ॉर्म दे देगा। एक आपको बहुत ज़्यादा डीप काम करना है उसके लिए भी और आपको छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं उसके लिए भी। ये आप दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से भी कर सकते हो, पर ईज़ी वे में आपको पाइथन जितना हेल्प कोई नहीं करेगा। पाइथन फॉर एआई एंड एमएल। एआई के बारे में तो सभी जानते होंगे। कोई 2-3 एग्ज़ाम्पल दे दीजिए जो आप डेली लाइफ़ में यूज़ करते हो वो एआई सिस्टम का। सिर्फ़ चैट बॉक्स में लिखना है, कोई भी कुछ भी लिख सकता है। आप डेली लाइफ़ में जो एआई का यूज़ करके अपना काम करते हो मतलब एआई के नाम दे दीजिए। चैट जीपीटी, इनवीडियो एआई, बहुत फ़ेमस है चैट जीपीटी। अब चैटबॉट काम कैसे करता है? उसके लिए उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन कोडिंग वर्ड में मैनिपुलेटिवली बाइनरी सिस्टम में लिखा जाता है, तब जाके चैटबॉट वर्क करता है। वो अप टू डेट रहता है। मतलब उसमें लाइव एपीआईज़ डाले जाते हैं, जिससे वो अप टू डेट रहे। इन्फॉर्मेशन उसमें पहले से फिल रहे। अब एआई की फील्ड में पाइथन बहुत हेल्प करता है। तो उसकी लाइब्रेरीज़ भी है नमपाई और पांडास। अब पांडास के बारे में मैंने पहले ही बताया कि उसके बहुत बड़े डेटा सेट्स होते हैं और बहुत सारी लार्ज और इंडस्ट्रीज़ और मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होता है वो। अब नमपाई हो गया, वो नमपाई तो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। एआई हेल्थ केयर में भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हेल्थ केयर की फील्ड में क्या रोल प्ले कर सकता है, किसी को कुछ आइडिया है क्या? कोई कुछ सीखना चाहेगा कि हेल्थ केयर में एआई क्या यूज़ उसका क्या यूज़ होगा? कोई कुछ भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू या तो थॉट प्रोसेस में से कुछ भी लिखना चाहता हो, लिख सकता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। एक्स-रे रिपोर्ट्स हो गए, एमआरआई रिपोर्ट्स हो गए, तो उसे कंपेयर करके, वो एनालाइज़ करके वो बता सकता है या किस पार्ट में डिफेक्ट है या तो कुछ इश्यू है, वो इज़िली कैच कर सकता है। एआई हेल्थ केयर और मेडिकल डिपार्टमेंट में बहुत हेल्प कर सकता है। ऑटोनॉमस ड्राइविंग, ये नाम सुन के ही सबके दिमाग में टेस्ला आ जाता है। अब टेस्ला को भी एआई यूज़ करने के लिए पाइथन टीम की ज़रूरत पड़ी थी। तो पाइथन आपको रिकॉग्निशन तो बहुत अच्छी देगा। ये एक सिंपल सी स्किल है जो आप यूज़ करके बहुत बहुत एक्सपोज़र ले सकते हो। अब ये एआई ड्राइविंग स्किल में कैसे यूज़ हो रहा है वो मैं समझाता हूँ। देखिए रोड सेफ्टी हो गया। अब रोड सेफ्टी सबको चेक करके एआई को डिसीज़न लेने पड़ते हैं। रोड सेफ्टी को पहले देखना पड़ता है। फिर ह्यूमन और तो एनिमल्स को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ता है और इसके बेसिस पे ड्राइविंग डिसीज़न्स लेता है वो एआई।
जो पहले से कोड लिखे गए होते हैं पाइथन थ्रू, या तो दूसरी लैंग्वेज भी यूज़ होती है, पर दूसरी लैंग्वेज पाइथन के साथ इंटीग्रेट करके यूज़ होती है, ताकि जो भी हम कोड लिखे वो समझ सके और वो गेम कॉम्प्लेक्स तो हो, पर ईज़ी टू यूज़ हो और वो इंटरफेस भी अच्छा हो। आप पाइथन तो कहीं पे भी सीख सकते हो, या तो कोई भी लैंग्वेज हो गई, आप कहीं पे भी सीख सकते हो। इम्पेरियम ही क्यों? ये मैं ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। आपको सर्टिफ़िकेट्स तो सब दे देंगे, फ्री कोर्सेज़ भी कुछ-कुछ जगह मिल जाएँगे, पर हम लोग एक टीम की तरह वर्क करते हैं और हमारा मेन मोटिव है कि हम आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स देंगे, जो रियल लाइफ़ में यूज़ होते होंगे। 2-4 मैं एग्ज़ाम्पल भी दे दूँगा और आपको इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाएँगे और रियल टाइम वाले जो प्रोजेक्ट्स होंगे, वो आपको हैंडओवर करने में चांस देंगे। ये एक हमने ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया है फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स। मतलब हम स्टूडेंट्स कम्युनिटी मिलके ही एक अच्छा-सा एक प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हैं, जिससे सब साथ में ग्रो कर सकते हैं। ये सेशन कंप्लीट होते ही आपको जैसे कि सर्टिफ़िकेट्स मिल जाएँगे। हमारे सोर्सेज़ और कोर्स जो भी कोर्स के सोर्स है, नोट्स है हो गए, प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स हो गई, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ देने की ज़रूरत है वो आपका सपोर्ट और क्यूरियोसिटी रखनी है आपको। सोचते रहना है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीज़ दिखे जैसे अब एक्सपेंसिव नाम किसने सुना है? एक्सपेंसिव वो आईओएस के लिए है। अब वो प्रो वर्ज़न शेयर करता है, पर वो तो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, उसके इतने कॉम्पिटिशन्स भी नहीं है। तो आप उसका एक कॉपी या तो फिर उसका ज़ेरॉक्स जैसा कुछ एक अलग एप्लीकेशन बना सकते हो और उसको आप फ्री में प्ले स्टोर पे भी अपलोड कर सकते हो। आप वो कॉम्पिटिशन और वो मार्केटिंग में ड्रॉप थोड़ा इनपुट दे सकते हो और वो आपके सीवी में भी बहुत हेल्प करेगा। हमारे यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, अपने वीडियो लेक्चर्स फ्री होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा हैंडल पेज है यूट्यूब का। इसमें डीबीएमएस, पाइथन, डिज़ाइनिंग बहुत सारे आपको दिख जाएँगे। आप सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी फैमिली से जुड़ सकते हो। यहाँ पे मेरे लेक्चर्स है पाइथन के, ये डिज़ाइन लेक्चर्स है, ये डीबीएमएस के लेक्चर्स है। बेसिकली आप हमारी टीम में जुड़ सकते हो, आप हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। हम आपको कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस तो करवाएँगे पर एक प्रॉपर जर्नी देंगे। अब सर्टिफिकेट तो सब देते हैं, पर जर्नी जर्नी भी तो मैटर करती है। तो हम आपको बहुत अच्छी जर्नी देंगे। फिर से वेबिनार के वो पीपीटी पे आते हैं। अब फ्यूचर अपॉर्च्युनिटीज़ क्या-क्या होगी? मतलब किस-किस डोमेन में आप हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हो? डेटा एनालिसिस हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, ऑटोमेशन हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। ये सारी फील्ड्स हैं, जिस फील्ड में आप हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मैं और आप या तो फिर कोई भी बैचमेट्स या तो ग्रुपमेट्स मिलके कुछ अच्छा-सा बेहतरीन-सा प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। या तो आपको किसी को कुछ डाउट हो गया, आप किसी चीज़ में अटक गए हो या तो किसी प्रॉब्लम में अटक गए हो कोडिंग लैंग्वेज में, तो आप हमारी टीम को रीच कर सकते हो। वो आपको किसी इंट्रोड्यूस करवा देगी या तो आपका प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर देगी। वैसे ही आप हम मिलके अच्छे से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, कंपनी लेवल तक। एनी क्वेश्चन्स गाइस? सब अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख सकते हो।
हैंड रेज़ कर दीजिए या तो क्वेश्चन लिख दीजिए। ऑडियो ऑडियो ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यस गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप लोग जस्ट चैट बॉक्स में डाल दीजिए, विल बी आंसरिंग इट। यस, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, हाँ, बिगिनर्स के भी लिए इंटर्नशिप होगी। आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको सर्टिफ़िकेट्स मिलेगी। कंपनी में इंटर्नशिप भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। पर उसके लिए पहले आपको हमारे साथ मिलके कोर्स कंप्लीट करना होगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड करेंगे उसकी उसका टेस्ट देके या तो फिर कोर्स कंप्लीट करके उसका नॉलेज पहले गेन करना होगा और वो कोर्स कंप्लीट करके आपको सर्टिफ़िकेट गैदर करना होगा और वो जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो कंप्लीट करने होंगे। फिर हम आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करेंगे। और कोई? एनीवन? कोई कुछ भी पूछ सकता है। कोई आपको जज नहीं करता। कोई आपको नहीं जानता। आप कुछ भी पूछ सकते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ही है। ये बनाया भी स्टूडेंट्स ने है और है भी स्टूडेंट्स के लिए ही। तो आप कुछ भी पूछ सकते हो, फ्रेंडली कुछ भी पूछ सकते हो। अनुष्का, दिव्या, गर्वित, हेमंत, प्रतीक्षा, कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है क्या? वेब डेवलपमेंट के लिए जेंगो हो गया। मैंने पाइथन्स के प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैं अभी आईपी जियो लोकेशन ट्रैकर के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। किसी को हेल्प करना है या तो कंट्रीब्यूट करना है तो मुझे जॉइन कर सकता है। मैंने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में ब्लैक जैक हो गया, फिर थोड़ी गेम्स बनाई हैं। मेरे पास अभी तक 10-15 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने ऐसे रफली बनाए हैं और अभी मैं ये साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, जैसे आईपी जियो लोकेशन हो गया, फिर वेदर फोरकास्टिंग वाला एक ऐप हो गया, वो मैं बना रहा हूँ अभी। आप भी मेरे साथ जॉइन करके वो प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर सकते हो या तो फिर वो ग्रुप जॉइन कर सकते हो। फॉर मन एंड पाइथन डिपेंड करता है, वो वर्कलोड पे या तो यूसेज पे। और कोई किसी को कुछ क्वेश्चन होंगे तो? हाँ, आप जॉइन कर सकते हो, पर उसके पहले आपको पाइथन के कोर्स कंप्लीट करना होगा, या तो बेसिक लेवल तक आपको सीखना होगा। तभी जाके आप प्रोजेक्ट में कुछ इनपुट दे पाओगे या तो कुछ सीख पाओगे, क्योंकि उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही चीज़ें भी होंगी। तो आपको पहले अपना कोर्स कंप्लीट करना होगा, जो हम लोग यूट्यूब पे हमारा कोर्स अवेलेबल होगा और फिर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। आप मेरे साथ जॉइन कर सकते हो और कोडिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा कर सकते हो। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल पेज है। सब हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, आपको लाइव अपडेट मिलते रहेंगे।
और कोई कुछ भी सवाल पूछना चाहता है? ड्यूरेशन मैं पहले उमेश आपका सवाल का जवाब दे देता हूँ। ड्यूरेशन हमारा एक एक वीडियो लेक्चर 10 से 20 मिनट का होता है और ये 3 महीने जितना चलेगा, उसमें ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें आपको बहुत सारे मतलब एक लेक्चर में आपको एक प्रोजेक्ट तो कंपल्सरी मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप अब 3 महीने तक चलेगा आपका, तो आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स करके अपना सीवी में वो उसे पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। हमारे कोर्स यूट्यूब चैनल पे फ्री है, उसकी लिंक प्रोवाइड की है। हमारा कोर्स 40 आवर्स का होगा, वो आप कंप्लीट कर दोगे तो फिर हमारी वो प्रोग्रामिंग और डेवलपिंग टीम ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोर्स कंप्लीट कर दिया तो हम अलग से सर्टिफिकेट भी देंगे और फिर इंटर्नशिप ऑफर भी करेंगे। और कोई क्वेश्चंस? और किसी का मतलब स्किल्स यूनिक हुई और उसका प्रोजेक्ट एक्सेप्शनल हुआ या तो कुछ यूनिक सा बना दिया तो हम उसे हमारी टीम में ज्वाइन करने के लिए भी ऑफर करेंगे। टॉपिक बेसिक टू इंटरमीडिएट सारे लेवल के टॉपिक्स उसमें कवर हो जाएंगे। कोर्स की फीस क्या है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको नोट्स भी फ्री में मिलेंगे, आपको वीडियो लेक्चर्स भी फ्री में मिलेंगे, कोई फीस नहीं है। ये फॉर द स्टूडेंट्स और बाय द स्टूडेंट्स है। टेक्स्ट बुक भी आपको फ्री में मिलेगी। वो एक लेक्चर कंप्लीट होगा तो उस मेरा एक वीडियो वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा ना, उसके डिस्क्रिप्शन में ही तब तक का नोट्स उसको उसमें ही मिल जाएगा आपको। इंस्टॉलेशन के वीडियो अभी यूट्यूब पे आ चुके हैं, आप चेक कर सकते हो। और 2-3 वीडियो भी आगे आ जाएगी, आप फिर उसमें कंटिन्यू कर सकोगे। एक रजिस्ट्रेशन लिंक आई थी, उसमें आपको हाँ, ये इम्पीरियम के ग्रुप में आ गया है लिंक, वो आपको ज्वाइन करना है। आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी क्वेरीज हो तो डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, कुछ भी क्वेरी हो या तो कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमें पूछ सकते हो। और कोई सवाल? हाँ, हम हमारे खुद के टेक्स्ट बुक्स हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो रहा है या तो आपको कुछ थ्रिल और चिलिंग जैसे वे में ज्वाइन करना है या तो कुछ सीखना है, तो आप इम्पीरियम ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आगे का पार्ट कशिश को हैंड ओवर करता हूँ। हेलो कशिश। Yes, Krishna. Thank you for taking such a great session, Krishna. तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर मेल कर सकते हैं डायरेक्टली रीच आउट करने के लिए। और जो भी लेक्चर्स होते हैं दे आर ऑल कंडक्टेड ऑन यूट्यूब। अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर ऐसा कुछ होता है तो वी कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज गूगल मीट्स सो दैट यू कैन हैव अ session, one-to-one session with the tutor that you're taking the lecture from. और क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो है वो स्टूडेंट्स ने बनाई है स्टूडेंट्स के लिए, तो हम समझते हैं आपके प्रॉब्लम्स और हम
हमें फ़र्क भी पड़ता है। तो आप एक ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी कोर्स में या फिर यू हैविंग डाउट, देन वी विल रीच आउट टू यू एंड वी विल आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। या फिर आप हमें डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हैं हमें डायरेक्टली, या फिर हमारा मेल जो हमने दिया है imperiumofficialgroup@gmail.com, या फिर यू कैन कॉल अस डायरेक्टली ऑन द गिवन नंबर, और हम आपकी डेफिनेटली पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो I think we'll be concluding today's session if nobody has a question. If you still have a question, you can put it on the chat box. We'll wait for 5 minutes and we will conclude our session. Guys, if you have any more questions regarding lectures, regarding the webinar, या फिर जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं रिगार्डिंग इम्पीरियम ऑल्सो, तो आप उसे जस्ट चैट बॉक्स में टाइप करके डाल दीजिए एंड वी विल बी आंसरिंग यू। एवरीवन जितने भी अभी ऑनलाइन है सब अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? एक स्क्रीनशॉट लेना है, एक मेमोरी की तरीके। सब अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। हमारी टीम सिर्फ एक फोटो ले लेगी और वो मेमोरी की तरह से एक रखेगी कि हमारा फर्स्ट वेबिनार था। गाइस सिर्फ एक कैमरा ही ऑन करना है, अभी मैंने कुछ और तो मांगा नहीं, आप सिर्फ अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। थैंक यू। और भी कुछ है कुछ और? मिनिमम सब कर दो। नाउ यू कैन ऑफ योर कैमराज। All right, guys, we will be concluding our session for today. Thank you all for being a part of today's webinar, and thank you for listening to our webinar, and thank you for your patience. Also, your certificates will be forwarded to you in these 4 working days. And also stay connected with us. We'll be having more such events going ahead in future. So I'm looking forward to seeing you again. So keep learning and stay curious. Thank you, guys.